important, in your process, or in your, in pursuit of your achievement, in search of achievement. One element I've experienced, I've discovered so far in my teaching career, those people who are consistent, or those people who are, really positive, and similarly, it's actually the same, level are the part of the success. As far as mostly people, become intelligent or talented and strive to reach your desire, okay, your dream, and that is what the consistency, that is the continuity, okay, to continue for your achievement, for your purpose, not to be interrupted, okay, not to be sad, not to be disappointed, not to lose, your, thinking, your mental power, your willpower. That's actually what, as I was trying to quote last day, a few words in my lecture, that you have noticed games or sports, where on the ground, not only, see, dear student, this is very important to add here, not only, one player lose there, two players lose there, almost, teams, they lose on the ground. They don't get disappointed. They don't get, defeated or beaten, that now the next match won't be played, okay? But they come to play with more strength, with more willpower, with more serious efforts, with more, aim, determination, okay? With more positivity, with more confidence and trust and the faith, that now we have to perform more. We have to do something better on the ground. So this is actually the key to reach the success, okay? To achieve and accomplish the goal in the life. It's not so that the failure is not there. See, life is actually the composition of ups and downs. So we have to manage, we have to go ahead and to learn something, to get our aim, and not to be disappointed, not to cry, not to complain, okay, not to worry, or not to look for any other aid or help to come and bring us to the career, bring us near to the career of the opportunity. Not at all. So we are discussing what? Present simple or present indefinite tense. Dear students, tell me, how's your English going on? Tell me today, truly, not to please flatter or please me, but whatsoever is the truth, tell me. I'm just going to watch the comment you are giving me. How much it is going? You have any problem, difficulty, or any, uneasiness in my teaching? What's there, please? Because it's just like in online class, where we have no interaction or communication. So you have, something to write and say. If you have any, interruption, any uneasiness, please now share. I'm going to look at the comments, okay, you are sending to me. Tell me, please, okay, do you have any problem to understand the lecture? Yes, please tell. Okay, right, almost a few of the comments I've seen, I come across, and where nobody has the problem to, okay, stop me or to suggest or to guide me. If you have any individual problem, please, you can. Even I try to reply to your questions, okay, almost I have tried, but somehow I may not, because of, sometimes being very busy, or not able to reach the messages there, right? It's okay, now leave it now. तो बेटा आए आप, अब जो मतलब जो बात कर रहे हैं बेटा, सिलेबस से ही डिस्कस कर रहे हैं, सिलेबस से पढ़ रहे हैं और अच्छे नमूने से एंजॉय कर रहे हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की हम बात कर रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम बात कर रहे थे। दोनों देखो, सिंपल हम लिखें या इंडेफिनिट लिखें, दोनों एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क या डिफरेंस नहीं है, ठीक है। भले आप जो टेंस का नाम लिखें वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का नाम लिखें, या जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नाम लिखें, सॉरी, तो ये एक ही बात है, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट जो है वो एक ही बात है। तो आप देखें इस तरीके से, यानी आप प्रेजेंट सिंपल टेंस को सीख सकते हो। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, आज जो हम आपको बताएंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस या इंडेफिनिट के अंदर इसके यूजेस होते हैं, कॉन्सेप्ट होता है, जो टेंसेस का एक कॉन्सेप्ट होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो हम वर्ब सेट करते हैं,
हम सिंगुलर और प्लूरल के साथ जो कल हमने पढ़ा, तो कल कुछ स्टूडेंट्स ने बाद में मुझे जो क्वेश्चन करके पूछा कि सर देखो आए तो सिंगुलर है लेकिन आप बोलते हो प्लूरल है। बेटा जब मैं लेक्चर डिलीवर करता हूं तब मेरे अल्फाजों को गौर से सुनेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप पता नहीं बीच में आते हो लेक्चर में या ध्यान नहीं देते हो, तो फिर आपके जो क्वेश्चन होते हैं ना वो मुझे तब इरिटेट करते हैं जब मैंने जो बात बताई है उसके बिल्कुल अपोजिट आपका क्वेश्चन आता है। तो देखो मैंने कहा है आए बिल्कुल सिंगुलर है, लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस में आए के साथ जो वर्ब इस्तेमाल होता है वो प्लूरल वाला वर्ब इस्तेमाल होता है। ठीक है, वो हम सिंगुलर वाला वर्ब जो होता है एस और ईएस जब लगाते हैं तो वर्ब प्रेजेंट सिंपल टेंस का वर्ब सिंगुलर हो जाता है। तो हम वो वर्ब इस्तेमाल नहीं करते आए के साथ। आए को भी इधर जो ट्रीट करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर या कुछ और भी टेंसेस हैं, वहां जो आए को एज अ सब्जेक्ट हम ट्रीट करते हैं ना वो प्लूरल की तरह करते हैं। हालांकि हम जब ट्रांसलेट करते हैं तब हमें लगता है कि आई, मिसाल के तौर पर मैं बोल रहा हूँ कि आई एम टीचिंग, तो जाहिर में एक पढ़ा रहा हूँ, मेरे साथ कुछ 4 टीचर थोड़ी अभी खड़े हैं वो भी बता रहे हैं और मैं भी बता रहा हूँ। बिल्कुल वही बात है, हम तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मीनिंग की थोड़ी करते हैं। आप मीनिंग करके क्वेश्चन करते हो तो बातें जो है गौर से सुने, आपके क्वेश्चन को जहन में रखकर हम डिलीवर करते हैं लेक्चर। तो बेटा देखें प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर आज तो हम यूजेस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यूजेस पढ़ेंगे। लेकिन इधर एक मुझे मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूँ और मुझे बताना कि ये मैं सही लिख रहा हूँ या क्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखें, शी ट्राइज टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, शी ट्राइज टू लर्न इंग्लिश, शी ट्राइज टू लर्न इंग्लिश। देखो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है, तो इसमें कोई एरर नहीं है क्योंकि हमने शी के साथ क्या इस्तेमाल किया है, हमने सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल कर लिया है। और आपको पता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो वर्ब सिंगुलर होता है वो एस और ईएस के ऐड करने से होता है। तो हमने एस और ईएस ऐड कर दिया, तो देखो शी ट्राइज टू लर्न इंग्लिश। ओके, तो ये हो गया। करेक्ट है इनकरेक्ट है बेटा? देखो करेक्ट इनकरेक्ट यहाँ से हम शुरू करते हैं, फिर प्रैक्टिस या सेंटेंसेस तो मैं अलग दूंगा आपको, लेकिन इधर देखो थोड़ा मतलब यहाँ से बिगिनिंग हमारी होती है सिर्फ आपको जगाने के लिए कि भाई देखो ये सही है गलत है। बेटा ये गलत है, ठीक है। कई स्टूडेंट्स लिख रहे हैं चलो सर एक ओके, हालांकि मैंने बहुत एक माइनर चीज लिखी है इधर, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। अब देखो इधर लिखा हुआ है ट्राइस, ये हुआ, ये स्पेलिंग मिस्टेक। बेटा स्पेलिंग का क्वेश्चन आता है, हम पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा आपको बहुत अच्छे नमूने से। स्पेलिंग और पंक्चुएशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ भी आपको थोड़ी डिफिकल्टी इसलिए होगी क्योंकि ये चीजें हम पढ़ते नहीं है, सीखते नहीं है, तो वहां भी मैं कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। तो आप देखें ये स्पेलिंग मिस्टेक है। क्या होना चाहिए सिंगुलर के साथ? देखो मैंने आपको बताया कि वाई आखिर में आए, वाई से पहले कॉन्सोनेंट होता है, तो आप देखो स्पेल वर्ब की कौन सी हो जाती है, कौन सी स्पेल होती है। तो बेटा ये जो एरर है इस एरर को आप यानी शी ट्राइज, तो ये तो मैंने एक सेंटेंस दिया है खाली, ठीक है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक जो कॉन्सेप्ट होता है ना, हर टेंस का अपना अपना यूज होता है। हालांकि प्रेजेंट के अंदर भी प्रेजेंट के 4 एस्पेक्ट है, 4 टाइप्स, 4 काइंड्स है, लेकिन उनका भी एक सिचुएशन क्योंकि टेंस जो होता है वो बेटा कॉन्टेक्चुअल होता है, उसके अंदर सिचुएशन होती है, उसके हिसाब से इस्तेमाल होता है। तो ये जो प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो फर्स्ट यानी जो यूज है, जिसको हम क्या कहते हैं, यूजेस कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, यूजेस कहते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर, ठीक है। वो जो हम इस्तेमाल करेंगे यूजेस करके हम बोलेंगे क्या, यूजेस जो इसके हैं ना, यूजेस के अंदर जो फर्स्ट इसका यूज है जो कि पढ़ा हुआ इजी है, वो हैबिट, ठीक है, हैबिचुअल एक्शंस या रूटीन वाले एक्शंस, ठीक है। हैबिट्स हो, देखो हम इस्तेमाल करते हैं हैबिट्स के लिए, या जब रूटीन्स की बात। अब ऐसी बात जब भी आए, देखो ऐसे सेंस वाली, मीनिंग वाली बेटा जब भी बात आ जाए सेंटेंस के अंदर, तो आप देखें कोई और टेंस आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप कोई और वर्ब टेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब देखो करेक्ट इनकरेक्ट क्या है इधर, जो हमारा कॉन्सेप्ट पैटर्न है टीचिंग का, वो ये कि करेक्ट इसके अंदर ये होता है कि जब भी जुमले का मतलब या मीनिंग या सेंस उसके अंदर रूटीन वाली या हैबिट वाली बात आ जाए, तो हमें ना प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करना है, ठीक है, ना फ्यूचर और ना पास्ट कंटिन्यूस वगैरह इस्तेमाल करना है। हमें जो टेंस इस्तेमाल करना है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करना है, यानी हैबिट्स और रूटीन्स की बात है। लेकिन देखो की वर्ड्स भी होते हैं, की वर्ड्स भी बेटा होते हैं।
मिसाल के तौर पर हैबिचुअल एक्शन कब होते हैं? हैबिचुअल एक्शन तब होते हैं, हमारी हैबिट भी हम शो करें ना, तो देखो हैबिट हम जो शो करते हैं तो की वर्ड्स हम लगाएंगे, ठीक है, की वर्ड जो हम लगाएंगे तो हमारा यानी जो हैबिचुअल एक्शन होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस का वो दुरुस्त होगा। अब एवरी मैंने एक वर्ड लगा लिया, अब एवरी के साथ आप दूसरे वर्ड्स ऐड करेंगे ना, दूसरे वर्ड्स आप ऐड करें, ठीक है, एवरी के साथ, तो आपको ये हैबिचुअल एक्शन नजर आ जाएगा। बेटा देखें मिसाल के तौर पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, देखो एवरी के साथ एवरी मॉर्निंग, ठीक है, आप इस्तेमाल कर रहे हैं एवरी आफ्टरनून, ठीक है, देखो इस्तेमाल कर रहे हो। अच्छा एवरी डे आप इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, ऐसे मतलब मैंने तो एक कीवर्ड ऊपर लगा लिया है, आप इनके साथ ऐड करेंगे, ऐड करने से क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट बनेगा, आपका यूज बनेगा। और कौन सा यूज बनेगा कॉन्सेप्ट? जो ऊपर लिखा हुआ है, देखो हैबिट और रूटीन के फॉर्म में मैंने जो लिखा है ना वो आपका बन जाएगा। तो एवरी मॉर्निंग, एवरी आफ्टरनून, एवरी डे, देखो बेटा हो गया आपका। अच्छा इसी तरीके से एवरी वीक आपका हो गया, ठीक है, एवरी मंथ आप देखो ये हुआ, ठीक है, इस तरीके से एवरी ईयर आप देखें ये हो सकता है आपका। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, हैबिचुअल या रूटीन वाली जो है वो बात या उस कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। या आप देखें एवरी समर, एवरी विंटर, मैं देखो एक एक वर्ड दे रहा हूं, अब जरूरी नहीं है जो मैंने लिखा है वो वर्ड ना आए, लेकिन मैं आपको एक पैटर्न दे रहा हूं कि हैबिचुअल एक्शन जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनेगा, ठीक है, वो आप इस तरीके से। और अगर ऐसा आ जाए तो ऐसे एक्शन के साथ यानी आप प्रेजेंट सिंपल टेंस के वर्ब को प्रीफर करें, फर्स्ट फॉर्म को प्रीफर करें, ठीक है, एवरी मॉर्निंग, एवरी आफ्टरनून, एवरी इवनिंग हो सकता है, एवरी डे हो सकता है। इसके अलावा आप देखो एवरी के अलावा भी डेली आ सकता है, ठीक है, वर्ड डेली हम बेटा इस्तेमाल कर सकते हैं। या फ्रीक्वेंसी वाले एडवर्ब्स है, देखिए मतलब ऐसे अल्फाज भी आ सकते हैं, ठीक है, कोई न कोई बात अपने जो वो रूटीन के तहत हो, अब जरूरी नहीं है कि वो रोजाना हो। कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट ये समझ रहे होंगे कि हैबिट से मुराद ये होता है कि कोई चीज रोजाना हो, ठीक है, हाँ वो भी सही है। रिपीटेशन अगर किसी एक्शन में होती है ना बेटा, रिपीटेशन, एवरी मतलब ये रिपीटेशन है, देखो ये रिपीटेशन की बात है, एक्शन बार बार हो रहा है, समझे, फिर दोबारा क्वेश्चन ऐसा करेंगे कि मतलब फील होता है, क्योंकि जो बातें इतनी पढ़ाई जाती हैं वो आप सुनते नहीं हो और बाद में आप क्वेश्चन करेंगे वही बात वाली। तो बेटा एवरी से मुराद क्या, वो चीज आ रही है, देखो एवरी मॉर्निंग मतलब रोजाना रिपीटेशन की बात हो रही है, जब कोई एक्शन रिपीट होता है। अब उसमें ट्वाइस थ्राइस वाली बात भी आ सकती है, क्या ट्वाइस थ्राइस मतलब कोई नंबर आप ऐड कर सकते हो, वंस ट्वाइस थ्राइस, आप मतलब कोई चीज रूटीन में एक बार, दो बार, तीन बार हो किसी टाइम के साथ तो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे अल्फाज देखो हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स, क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी वाले जो हमारे एडवर्ब्स होते हैं ना, फ्रीक्वेंसी वाले, वो भी आपके एक्शन को यानी क्या करते हैं, हैबिचुअल बनाते हैं। फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स बेटा देखो पहले इस कॉन्सेप्ट को जान लेंगे, फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स। अब अगर ऐसे अल्फाज हम लिखेंगे तो भी हमारा एक्शन जो है वो हैबिचुअल एक्शन या रूटीन वाला एक्शन हो जाता है, फ्रीक्वेंसी वर्ड्स। अब फ्रीक्वेंसी वर्ड्स कौन से, देखो फ्रीक्वेंसी जो वर्ड्स हैं हमारे, वो वर्ड्स जैसे हम इस्तेमाल करते हैं ऑलवेज, जैसे आप देखें ऑलवेज जो वर्ड है ना वो फ्रीक्वेंसी में आता है। जैसे आप देखें ऑलवेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यूजुअली आप देखें बेटा, आप ये नहीं, देखो ये कीवर्ड्स में दे रहा हूं आपको, प्रेजेंट सिंपल टेंस का आसानी कर रहे हैं ना, सोल्यूशन देखना है हमें। अच्छा ऑलवेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यूजुअली आप इस्तेमाल कर रहे हैं, देखो आप ऑफन इस्तेमाल कर रहे हैं, देखो जनरली वर्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, देखो ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, जनरली हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पंक्चुअली, हाँ, फ्रीक्वेंटली, ऐसे कई अल्फाज है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। समटाइम्स, देखो समटाइम्स बेटा देखो ये वर्ड्स में दे रहा हूं, समटाइम्स या ओकेजनली, देखो ठीक है, हार्डली, ठीक है, देखो तो ये कौन से वर्ड्स हैं, ये वो वर्ड्स हैं जो मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस के एक्शन को क्या करते हैं, हैबिचुअल एक्शन बनाते हैं, या जो वो मतलब रूटीन वाला रेयरली आ सकता है। तो ऐसे अल्फाज देखो ये हम अपने कीवर्ड्स हैं, इनसे प्रेजेंट सिंपल टेंस का कौन सा यूज बनता है, यानी हैबिचुअल और रूटीन वाला यूज बनता है। हम कौन सा एक्शन प्रीफर करेंगे, हम इनके साथ करेंगे बेटा, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस का वर्ब करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं एग्जांपल्स पे,
अब हम आते हैं किस पे, एग्जाम्पल्स पे आते हैं। ये हुआ हमारा कॉन्सेप्ट यूज और फर्स्ट यूज है, यूज में भी फर्स्ट यूज है हैबिचुअल एक्शन फर्स्ट। अब हम आते हैं बेटा कॉन्सेप्ट पे आते हैं। कॉन्सेप्ट में देखें एग्जाम्पल्स। अब इसी के एग्जाम्पल्स के ये किस तरीके से करेक्ट होता है और किस तरीके से ये इनकरेक्ट होता है। सिचुएशन देखें बेटा किस तरीके से यानी इसका यूज करेक्ट होता है और किस तरीके से इनकरेक्ट होता है। तो देखो अगर ये कीवर्ड्स आ जाएंगे तो प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करेंगे, ना कि कोई और टेंस इस्तेमाल करेंगे। अब एग्जाम्पल में देखें कि वी, देखो ओके वी यूजुअली लिखें या डेली लिखें, जो भी आप इस्तेमाल करें, ठीक है। वी टेक, सॉरी वी टेक in English class, we take in English class daily। देखो ये हमने हैबिट शो कर दी, हैबिचुअल डेली या एवरीडे या एवरी मॉर्निंग, जो भी आप इस्तेमाल करें जो बन रहा है। तो देखो इधर ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, वी टेक इन इंग्लिश क्लास डेली। अब इनकरेक्ट क्या है, आपने अगर लिखा इस तरीके से बेटा, देखो अगर आपने लिखा वी आर टेकिंग इन इंग्लिश क्लास, इन इंग्लिश क्लास डेली, ठीक है, तो इंग्लिश क्लास, हाँ कोई ऐसी बात रह जाती है तो प्लीज आप खुद ही कर देना, इसमें कोई एरर नहीं होती। कभी जल्दी होती है या लिखने में वगैरह, उसका मतलब नहीं है कि हमें वो वर्ड भी क्लास में नहीं आता, तो वो मतलब वी आर टेकिंग एन इंग्लिश क्लास डेली। अब देखो ये इनकरेक्ट है बेटा, ये अब मिस्टेक है, ठीक है ना। यहाँ जो हमने इस्तेमाल किया है ये अब मिस्टेक है। अब देखो टेकिंग क्लास, क्यों मिस्टेक है, क्योंकि आपने ये वर्ड इस्तेमाल किया है। अगर ये वर्ड नहीं होता ना तो ये सही हो जाता। मिस्टेक एरर क्यों हो रही है, एरर जो हो रही है बेटा डेली की वजह से हो रही है। वो डेली जो आपने इस्तेमाल किया है ना, अब वो डेली हैबिचुअल को शो करता है, रूटीन को शो करता है, लेकिन हमने ये इस्तेमाल कर लिया, इसीलिए देखो ये एरर हो गई, ठीक है। क्या हो गई, एरर हो गई। तो वी आर टेकिंग इन इंग्लिश क्लास डेली भी लिखा है और कंटिन्यूस टेंस भी हमने इस्तेमाल कर लिया, तो अब ये हमारी एरर होगी। तो हैबिचुअल एक्शन के साथ, रूटीन वाले एक्शन के साथ आप देखो हम कोई और टेंस इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए हमें इसका केयर करना पड़ेगा, जो हमारे हैबिचुअल एक्शंस हैं बेटा उनमें हमें कोई और टेंस और वर्ब ऐड नहीं करना होगा। और वर्ब ऐड करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एनदर सेंटेंस देखें, कोई और एग्जाम्पल देखें, ठीक है। दे, देखो दे विल विजिट, एक ये हुआ, और दूसरा देखें दे विल विजिट, विजिट ये होता है, ठीक है, दे विल विजिट या विजिट, ओके, द हिस्टोरिकल प्लेस एवरी ईयर। तो हम देखो किस यूज को पढ़ रहे हैं बेटा, हम किस रूटीन को पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं हैबिचुअल एक्शन के एग्जांपल्स को। अब दोनों वर्ड्स मैंने दे दिए, दे विल विजिट या विजिट द हिस्टोरिकल प्लेस एवरी ईयर। कीवर्ड देखो, आप कीवर्ड को देखो और उसको देखकर फिर जो है वो आप ऑप्शन देखो, ये कीवर्ड आ गया लास्ट। तो ये अल्फाज जो है रिस्ट्रेन कर रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं यानी यूज को, कि हम क्या इस्तेमाल करें। तो मैंने एक ऑप्शन विल विजिट दिया है और देखो विजिट भी दिया हुआ है, और देखो देखो ये, तो ये अल्फाज जो है ना वो इनको मतलब बाउंड कर रहे हैं, इसीलिए आप देखें ये आपका ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। टेंस तो आ रहा है लेकिन ये इस्तेमाल नहीं होगा, राइट ऑप्शन होगा अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द टेंस ऑफ habitual aspect inside the sentences. We follow what? Present simple tense, not any other use of the tense here in such examples. So this one is the right and quite accurate, while the use of future indefinite is incorrect one. तो इस तरीके से बेटा ये देखो incorrect होता है। another example आप देखें, ठीक है। तो इधर आप देखो ट्रांसलेशन के हिसाब से नहीं चलेगा, ट्रांसलेशन के हिसाब से हम मतलब इस्तेमाल करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो एग्जाम्पल आप देखें, अच्छा द स्टूडेंट्स, देखो द स्टूडेंट्स ऑलवेज, देखो देश
फॉर देयर एम या पर्पस, बेटा जो भी इस्तेमाल करें। अब देखो एक ब्लैंक है, ए ऑप्शन। अच्छा, आर प्रिपेयरिंग, ए ऑप्शन आर प्रिपेयरिंग। बी ऑप्शन आप देखो, बी ऑप्शन आप देखो यानी प्रिपेयर, ठीक है। सी ऑप्शन आप देखो प्रिपेयर्स, ठीक है बेटा। और डी ऑप्शन आप देखो हैव बीन प्रिपेयरिंग, ठीक है। अब देखो द स्टूडेंट्स ऑलवेज डैश फॉर देयर एम। प्लीज लुक एट द कीवर्ड, क्वाइट सिंपल, very interesting, entertaining and thrilling, use and the concepts of present simple tense. I hope you are easy to learn all of these concepts here, right? Please look at the sentence and sentence following the options. So right option कौन सा है? बिल्कुल आप दुरुस्त बता रहे हो बेटा। राइट ऑप्शन जो इधर है प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर, वो 20 सेकंड है। क्यों है? क्योंकि इधर आपने ऑलवेज वर्ड देखा है, इधर आपने कौन सा वर्ड देखा है? ऑलवेज वर्ड देखा है, इसीलिए राइट ऑप्शन 20 सेकंड आपका हो गया। स्टूडेंट्स ऑलवेज, हालांकि ये इस तरीके से आ सकता है, जो स्टूडेंट्स कहते हैं ना भाई सेंटेंस कंप्लीशन, बेटा सेंटेंस कंप्लीशन वाले एग्जांपल्स भी हम दे रहे हैं। ये सेंटेंस कंप्लीशन होता है, जैसे समझ के हमें, और सेंटेंस कंप्लीशन का ज्यादा देखो सेंटेंस इसमें टेंस के अंदर ही यानी ये कॉन्सेप्ट होता है। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट सिंपल टेंस के यूज को या उसके सेंटेंस को आप जो है वो करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, another example I would like to add, देखें बेटा another example आप देखें, farmers, okay, farmers dash तो देखो मतलब जो एक जनरल अकरेंस हम कहते हैं या हैबिचुअल एक्शन वाला जो एग्जांपल कहते हैं, फार्मर्स डैश अर्ली इन द मॉर्निंग। अब इसमें बेटा ऑप्शन देखें आप, ऑप्शन ए गेट अप, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखें गेटिंग अप, बहुत आसान है ये। अच्छा, तीसरा ऑप्शन आप देखें, ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखें विल बी गेट अप, विल बी गेट अप। और डी ऑप्शन आप देखें हैज गॉट अप। व्हिच वन इज द बेटर ऑप्शन? हरिए प्लीज, ठीक है। फार्मर्स डैश अर्ली इन द मॉर्निंग, देखो समाउ हैबिचुअल एक्शन ये लग रहा है, तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा बेटा? इधर हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ए ऑप्शन देखो हमारा राइट ऑप्शन, फार्मर्स ओके डैश अर्ली इन द मॉर्निंग, तो ये गेट अप हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस जो इस्तेमाल होता है वो हैबिचुअल या रूटीन वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है। ये वो हमारा फर्स्ट यूज। अब हम आते हैं सेकंड यूज के ऊपर, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेकंड यूज है बेटा। सेकंड यूज कौन सा है प्रेजेंट सिंपल टेंस का? हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस को, जो जनरल ट्रूथ होता है, जो जनरल ट्रूथ होता है, हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को बेटा जनरल ट्रूथ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कौन सा ट्रूथ? जनरल ट्रूथ। जनरल ट्रूथ क्या होता है? कौन सा मतलब यानी स्टेटमेंट होता है जिसके लिए हम, यानी वो जो नेवर चेंज, ठीक है, वो जो नेवर गोइंग टू चेंज, उसको हम क्या कहते हैं? जनरल ट्रूथ। बेटा जनरल ट्रूथ से मुराद क्या? यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक यूज है। यानी आप देखो, मैं आपको बताऊं कि ये जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना, ये इस्तेमाल होता है, एक थोड़ा या एक और एलिमेंट सुन लो जो कि सुनने के लिए, ठीक है ना। प्रेजेंट सिंपल टेंस जो इस्तेमाल होता है वो परमानेंट एक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है। वो एक्शंस जो परमानेंट हो, वो एक्शन जो पास्ट में हुए हो, वो एक्शन जो प्रेजेंट में हो रहे हैं, वो एक्शन जो फ्यूचर में हो रहे हो, ऐसे एक्शन जो टाइम के हिसाब से चेंज ना हो, तो ऐसे एक्शंस के लिए जो एक फिक्स टाइम है, जो एक फिक्स टेंस है, जिसको हम परमानेंट टेंस कहते हैं, तो ऐसे एक्शंस के लिए जो हम टेंस इस्तेमाल करेंगे वो हम इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। सुने, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आप देखें यानी पास्ट में भी परमानेंट रहे, ठीक है, यानी प्रेजेंट में भी है सेम, फ्यूचर में भी सेम रहेंगे, जिनको हम फैक्ट्स कहते हैं।
जिनको क्या कहते हैं बेटा, फैक्ट्स कहते हैं, तो वो चेंज नहीं होती, ठीक है। तो ऐसे जो चेंज नहीं होती, जो अनचेंजिंग एक्शंस होते हैं, जो यूनिफॉर्म एक्शंस होते हैं, तो ऐसे एक्शंस को हम कहते हैं परमानेंट एक्शंस, और जो परमानेंट एक्शंस होते हैं उनको आप कहते हैं जनरल ट्रूथ, और जनरल ट्रूथ वाले एक्शन को आप कहते हैं यानी नेवर चेंजिंग एक्शंस, एक्शंस नॉट गोइंग टू चेंज। और ऐसे एक्शंस को हम जो इस्तेमाल करते हैं वो हम किसी और टेंस के अंदर इस्तेमाल नहीं करते, हम इस्तेमाल करते हैं किस टेंस के अंदर, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो मैंने यूज लिखा है वो यूज देखो एक्सप्लेन भी कर दिया, तो ऐसे यूज के लिए आप कोई और टेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। समझ में आई बात या नहीं? समझ में आई ये बात जो मैंने बताया? तो देखो इसको डिफाइन किया है, इसको एक्सप्लेन किया है कि जनरल ट्रूथ क्या होता है, ठीक है बेटा। तो जनरल ट्रूथ ये होता है कि जिसके अंदर मतलब नेवर गोइंग टू चेंज एक्शन, ठीक है, नेवर गोइंग टू चेंज एक्शन, एक्शन जो है ना वो चेंज ना हो, नेवर गोइंग टू चेंज, नेवर गोइंग टू, देखो ये मतलब वो एक्शन चेंज ना हो, ना हुआ, ना हो रहा है, ना होगा, ऐसी जो सिचुएशन या जो एक्शंस हो। स्टूडेंट वेलकम बैक। तो देखो बेटा हम जो बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे जनरल ट्रूथ की बात कर रहे थे कि उसका जो कॉन्सेप्ट वो हम किस तरीके से इस्तेमाल करें, उस सिचुएशन में या सेंटेंसेस में या एग्जांपल्स में वो किस तरीके से इस्तेमाल होता है। जनरल ट्रूथ देखो क्या मैंने उसको पहले भी मतलब थोड़ा बेटा एक्सप्लेन किया था, आपको बताया था वॉइस वगैरह सही आ रहा है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, बताना। तो देखो यानी नेवर गोइंग टू चेंज जो एक्शन हो ना, ऐसे एक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि आप प्रेजेंट सिंपल टेंस, और उस एस्पेक्ट का जो नाम है, ठीक है, और वो नाम है जनरल ट्रूथ, जो चीज मतलब चेंज ना हो, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों जो वो मतलब टाइम्स के अंदर वो सेम हो, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं। काफी एग्जांपल्स आपको देते भी है, आपने छोटी छोटी क्लासेस में ये बहुत पढ़ा है, ठीक है ना। देखो आप हम इस्तेमाल करते हैं, देखो द सन, बेटा देखो द सन राइजेस, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट। अब आप देखो ये सेम हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल किया है, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस हमने इस्तेमाल किया है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का ये यूज है क्योंकि जनरल ट्रूथ की बात हो रही है ना, इसीलिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये वर्ब राइजेस इस्तेमाल हुआ है। हाँ अगर आप ऐसा लिखते, देखो बेटा द सन इज राइजिंग, देखो अब ये मिस्टेक है, राइजिंग इन द ईस्ट, अब ये आपकी मिस्टेक या एरर होगी, अब ये एरर है बेटा, कौन सी एरर है, क्योंकि हमने इसको यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल कर दिया। तो ये वो एक्शंस हैं जो जिन, हाँ लेकिन अगर हम कोई टाइम वगैरह ऐड करेंगे, देखो इसके बाद जब सेकंड टेंस हम पढ़ेंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस, तो मैं आपको कंपेयर करवाऊंगा, देखो एक कंपैरिजन दूंगा, तो भाई देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस है और कंटिन्यूअस है किस तरीके से चेंजिंग होती है। मिसाल के तौर पर मैं अभी बाहर जो वो खड़ा होकर देखूं या आप भी देखें कि देखो सन जो है वो राइज हो रहा है, एक सिचुएशन बनाए कि एट द मोमेंट हम ऐड करें वर्ड, नाउ ऐड वर्ड करें, ठीक है, एट दिस टाइम करें, तो कोई ऐसा कीवर्ड ऐड करके आप लगाएंगे तो जाहिर है आप फिर तो कंटिन्यूअस टेंस कर देंगे। लेकिन जब ये अकरेंस हो रही है, एक जनरल अकरेंस हो रही है, एक जो वो फैक्ट के तौर पर ये इस्तेमाल हो रहा है, तो आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे, दूसरे किसी का यूज नहीं करेंगे। इन अदर एग्जाम्पल आप देखें, दूसरा एग्जाम्पल बेटा देखें, मिसाल के तौर पर मैं आपको दे रहा हूं, ओके एग्जाम्पल देखें, हनी, ऑप्शन है आपका देखो हनी डैश स्वीट्स, ये नहीं है कि अब यानी हर वक्त आप देखें परमानेंट सिचुएशन की बात है, जनरल ट्रूथ की बात है, ठीक है। तो अब आपका ऑप्शन ए ऑप्शन है, देखो ए ऑप्शन है बेटा देखो हैज बीन, हालांकि स्ट्रक्चर तो हमारी ठीक हो जाती है जब भले ट्रांसलेट करें सब्जेक्ट देखें, जो भी स्ट्रक्चर का ऑप्शन है ना वो तो दुरुस्त हो जाता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली इसका एस्पेक्ट क्या है कि जब कोई फैक्ट की आप बात करते हो या किसी ट्रूथ की बात करते हो तो प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल होता है। ए ऑप्शन हैज बीन स्वीट, ठीक है। अच्छा बी ऑप्शन आप देखें इज बीइंग, देखो स्वीट, राइट। अच्छा सी ऑप्शन आप देखें, इसके अंदर सी ऑप्शन आप देखें वो स्वीट, ठीक है। अच्छा फिर आप डी ऑप्शन आप देखें
डी ऑप्शन आप बेटा देखें, बीन स्वीट। देखो कौन सा राइट ऑप्शन है बताएं? हनी डे स्वीट, इज बीन, इज बीइंग, वॉज बीन, कोई इसमें राइट या करेक्ट ऑप्शन है? कोई भी नहीं है ना। तो आप बोलेंगे सर ई ऑप्शन बना लो, और देखो ये राइट ऑप्शन हुआ इज। क्योंकि इज देखो कुछ स्टूडेंट समझते हैं बेटा, कुछ स्टूडेंट ये भी समझो, ये भी प्लीज यहाँ समझो बात, ये भी क्वेश्चन आता है मुझे और आएगा, मैं आपको बता दूं। कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि वो वर्ब जिसके आकर में एस और ईएस ऐड करें तो वो वर्ब हमारा जो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का होता है, और नहीं होता बेटा। इज, एम, आर ये प्रेजेंट का भी फॉर्म होता है, ये प्रेजेंट का भी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और ये मेन वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। हमने इसको पढ़ा भी है, मैंने अलग इसको पढ़ाया है। देखो जब आपका कंटिन्यूस टेंस बनता है तब ये वर्ब्स आपके हेल्पिंग वर्ब्स हो जाते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस टेंसेस की जो फॉर्मेशन होती है इन वर्ब्स के सिवा नहीं होती, तब ये हेल्पिंग वर्ब्स हो जाते हैं। जब ये वर्ब अकेले इस्तेमाल हो, यानी इज अकेला इस्तेमाल हो, ए एम अकेला इस्तेमाल हो, ठीक है ना, आर अकेला इस्तेमाल हो, इनके साथ कोई और वर्ब ना हो, तो इन वर्ब्स को हम क्या कहते हैं? मेन वर्ब्स कहते हैं। फिर ये हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते। तो इधर जो इज इस्तेमाल हुआ है, जो कि आपका राइट ऑप्शन है बेटा, ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, ये मेन वर्ब है। आई एम अ टीचर, तो एम इधर देखो मेन वर्ब है। स्टूडेंट कहता है सर आप बोलते हो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, सिंपल है, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, तो एम देखो इस्तेमाल हुआ है। बेटा हेल्पिंग वो होता है जो किसी दूसरे टेंस को बनाने के लिए, यानी हेल्प करे वर्ब की और उससे कोई कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस बन जाए, तब ये वर्ब कहलाएगा हेल्पिंग वर्ब। लेकिन इधर कोई ये नहीं, मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। जैसे राइट इस्तेमाल होता है, जैसे राइज इस्तेमाल होता है, जैसे इससे पहले स्पीक या अटेंड हमने मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया, तो ये इस तरीके से इस्तेमाल होता है। तो ये जनरल ट्रूथ का है बेटा, इसीलिए हमने देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस का फॉर्म कौन सा इस्तेमाल किया है, यानी इज इस्तेमाल किया है। हालांकि हैज बीन भी प्रेजेंट है लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस नहीं है, इज बीन भी प्रेजेंट है, प्रेजेंट सिंपल टेंस नहीं है, वाज चलो पास्ट है। लेकिन जो राइट ऑप्शन हो रहा है इधर देखो इज का हो रहा है, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ जो है वो ये हमें जो है वो शो हो रहा है, इसीलिए हमने देखो बेटा ये इस्तेमाल किया है। अच्छा ऐसे और भी आपको एग्जांपल्स कई मिलेंगे जो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर जो है वो सही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं बेटा, देखें एक और एग्जाम्पल आपका, टू, देखो टू एंड टू या टू प्लस टू आप करें, ठीक है, टू प्लस टू कर ले या टू एंड टू करें, देश, देखो ये हुआ टू एंड टू या टू प्लस टू, जैसे आप इसको लिखें बेटा टू प्लस टू लिख लें, और ये भी लिखा जाता है, देखो ओ आर, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टू प्लस, ये भी लिखते हैं टू प्लस टू डैश फोर। अब देखो इसके अंदर भी ऑप्शन है एक, ठीक है, इसके अंदर एक ऑप्शन है इज, अब इसमें तो गलती होगी आर, ठीक है ना, और इसमें देखें विल बी, ठीक है, और हैव बीन, तो ये ऑप्शन हो गए बेटा। आप देखो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, टू एंड टू डैश फोर या टू एंड टू, देखो टू प्लस टू डैश फोर, तो बताएं इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन बताएं बेटा, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बताएं इसका कौन सा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है बेटा, इसका राइट ऑप्शन ए, कौन सा राइट ऑप्शन है, ए, यानी टू प्लस टू इज फोर होगा। ये मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाऊंगा, ये अलग टॉपिक है हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, सिलेबस हो तो देख लें, मैं अलग पढ़ाऊंगा, इज आएगा आर नहीं आएगा, मुझे पता है आप पूछेंगे मुझे, क्योंकि सर आप बोलेंगे फोर लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इज क्यों हुआ है, मैं पढ़ाऊंगा, ये अलग टॉपिक है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो इनमें होगा वो कौन सा होगा, इज होगा। इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। या दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए बेटा, हम इस्तेमाल करते हैं जैसे वोटर, देखो वोटर डैश एट, देखो 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है बेटा, देखो वोटर डैश 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप मुझे खुद बताएं कि ये कौन सा यूनिवर्सल ट्रूथ है या नहीं, मतलब एक फैक्ट है, साइंटिफिक जो ट्रूथ्स होते हैं,
साइंटिफिक जो ट्रूथ्स और फैक्ट्स होते हैं ना बेटा, वो भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में इस्तेमाल करते हैं, किसी और टेंस में इस्तेमाल नहीं करते। तो आप देखें इसके अंदर ऑप्शन आपको हम दे रहे हैं, ठीक है, वोटर। अच्छा इधर देखो, यानी इज फ्रीजिंग, बेटा देखो इज फ्रीजिंग, बी ऑप्शन आप देखें, बी ऑप्शन देखें विल फ्रीज, विल फ्रीज, सी ऑप्शन आप देखें फ्रीजेस, ठीक है, फ्रीजेस, क्या फ्रीजेस, और डी ऑप्शन आप देखें फ्रीज। तो कौन सा राइट ऑप्शन है इसमें? सी देखो राइट ऑप्शन, कौन सा? सी राइट है। तो देखो जो जनरल ट्रूथ या जनरल अकरेंस वाली बात होती है तो उसके अंदर हम कोई और टेंस इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते, क्योंकि ये फैक्ट है जो पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर में है। तो ऐसे भले साइंटिफिक ट्रूथ्स हो, ठीक है, या भले जो वो यानी नेचुरल जो भी हो, तो उनके साथ देखो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते। कल मजीद बात करेंगे बाकी यूजेस पे और बाकी कंपैरेटिव जो इसका यूज होता है। कोई ऐसा क्वेश्चन हो वाकई जो मुझे पढ़ा है तो भले आप मुझे भेज देना, मैं मतलब उसको कल एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, थैंक यू।